माइक को और क्लोज करिए। इनका उत्साह बढ़ाइए। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पेशकश की ओर। Now, to keep the spirit of patriotism alive, we have Prithu Narayan Thakur of Class 2A with us, who will share his thoughts on this special day. So let's welcome him with big round of cheer. Everyone, respected principal sir, director sir, chief guest, teacher, parents and all my dear friends. My name is Prithu Narayan Thakur from class 2. Today is 15th August. At first I wish you all a happy Independence Day. This year we are celebrating 79th Independence Day. Independence Day is a national festival of India. It is an important festival of all of us. We got independence on 15 August
1947 from the British rule. It is the greatest festival of democracy. Many freedom fighters sacrificed their lives to get freedom for India. On this day, we remember our brave freedom fighter. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. इतने सुंदर और सार्थक शब्दों को साक्षात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले पेशकश की ओर। कराटे, जो कि सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं बल्कि आत्मरक्षा, साहस और का भी प्रतीक है। इसीलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए हमारे कराटे चैंपियंस का। Get ready everyone, it's time to see power, speed and discipline come alive on stage. Our karate champions are here to impress you with their bold moves and sharp skill. Karate teaches not only self-defense but also confidence and respect. So let's welcome our brave karate team by Master Sonu with big round of cheer. Hey! Us! Yo! Yeah! Sikodachi! Down! Ich! Ni! San! Si! Go! Look! Sit! Hut! You! Do! Attention! Mashidachi! Yo! And side punch! Ich! Ni! San! Si! Go! Look! Sit! Hut! You! Two! Attention! Mashidachi, your multi-punch and block. It's knee! Sun! Knee! Go! Look! Sit! Hut! You! Two! Attention! And everyone! Tower pyramid. नीचे शिप टावर टावर दो फ्लैग दो छोटा फ्लैग जड़ी मूव डाउन दो छोटा फ्लैग दो छोटा वाला दो छोटा जल्दी से लाइए दो छोटा फ्लैग बस फ्लैग moving move look the front side okay down flag up this side fast namaste pyramid down namaste stitching kit hey thank you okay चलो शामिल आ जाओ okay this is nice go B pyramid B go दो राष्ट्रीय छोटा फ्लैग दो फ्लैग राष्ट्रीय B से B
रेडी ओस लॉक करो बच्चे को संभाल थोड़ा सा लॉक करो Clap. Okay, nice. Go. कृष्णा पिरामिड वही गन वाला सांबवी बीच में आओ जल्दी रिंग बनाओ छोटी वाली बच्ची उड़ो This is action. Up. उठा. That's. Yes. Nice. Sit down. Single pyramid. Down. बड़ा वाला फ्लैग बड़ा वाला Okay, hand down, हाथ हटाओ, right, push, everyone, go. पैर खोल के रखो, लॉक करो एक दूसरे को, लॉक करके रखो, आप बेटा आराम से, good, आगे देखो, नेशनल फ्लैग आगे की तरफ दो, जल्दी उसका बोर्ड दो, बोर्ड है बढ़िया बहुत बढ़िया भारत माता की ओके डाउन बेटा नीचे धीरे सांभवी देन मूव बैक मूव आराम से मूव सेल्फ डिफेंस ग्रुप टीम 5 ग्रुप यही Ready. Hey. Us. Yo. Here. And grip. And defense. Go. Yeah. Okay. Back. Move. Us. Somebody. Us. Head to back. Yes. Us. Base. Us. Hand is allowed. Grip. चलो पुश again run moving grab it आगे this is good the group ready fast आगे ready push and good lock टीम रेडी करो प्लेट वाला गो प्लेट टीम रेडी यस प्लेट टीम प्लेट जल्दी जाओ जल्दी इधर है उस फाइट दैट पोजीशन हटे Nanchaku team, Nanchaku की डांस पीछे हवाएं हैं ready that move then it's more than the clapping okay change your action okay then second change ring wala team ko ready ring team ring jaldi
तो फास्ट फास्ट गो, रिंग जल्दी लेके जाओ, बजते रहेगा। रेडी, फास्ट 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 बजते रहेगा सर। रेडी, उस सेम रिपीट द सॉन्ग। रेडी, अप, रेडी, आगे पीछे, स्टार्ट, मूव, लगा, लेकिन फास्ट करो, डोंट से, और फास्ट, यस, एक्शन चेंज, ऊपर, अपर लो, अपर, रेडी, स्टार्ट, लगा, अभी अपर, अंदर, गो, ओके, नाइस, उस, वो लास्ट पिरामिड, गणेशा पिरामिड, लास्ट, गणेशा, सांबवी अपना बोर्ड लो, संभल के, जल्दी जल्दी, सांबवी बोर्ड लो, सांबवी आगे, ये लो बेटा, ये लो, रेडी, गो, जल्दी, चला, संभल के, this is my school, Oceanic Mind School. Okay, everyone, down. Slow. Slow. Up. And everyone. Line. Line. First line. Stop. Attention. Ready. Os. Yeah. Finish. थैंक यू सर। ये रहे आपके बच्चे सर जो करके दिखाए। हमारे सर डायरेक्टर सर दो शब्द अपने बच्चों के लिए कुछ भी बोल सकते हैं विशेष के लिए। महाभारत के रण में कृष्ण ने कहा था कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ना पड़ा, मुझे बुलाया गया तो मैं आया। बच्चों ने जो कार्यक्रम दिए बहुत शानदार, बहुत अच्छे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके कोऑर्डिनेशंस आप देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। अब मैं अपने टीचर को बोलता हूं पब्लिकली कि इस 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त के बीच में स्टेट में कहीं भी खेल हो रहा है तो ओसनिक माइंड के बच्चे जाने चाहिए। पेरेंट्स से बात करना मेरा काम है। कहीं भी मैंने जो प्रोजेक्ट्स बोला बुला दिया गया है, माइक मिल गया है। मैं यहाँ एक स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के लिए काम कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स स्कूल अलग से, वो मेरा अगला वेंचर है। जो लोग मेरे से जुड़ के मेरे साथ कुछ सीखना चाहते हैं वो लोग अभय जी से मिल लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे किए। एक बार जोरदार ताली तो बनती है बच्चों के लिए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे खाने का प्रबंध है, आप पीछे जाइए, धीरे से खाना खा के आइए और बैठिए शाम तक, क्योंकि आज का ये दिन फिर दोबारा नहीं आने वाला है। एक से एक अभी जबरदस्त परफॉर्मेंस आना बाकी है। देखिए, हम ये आपको नाच गान और बाकी कार्यक्रम नहीं दिखा रहे हैं, हम ये हमारा अभी तक जितना कार्यक्रम हुआ सब में मैसेज है, कुछ ना कुछ मैसेज है। आजादी की लड़ाई जब लोग लड़ रहे थे तो क्या क्या हुआ, और अब अभी बच्चों ने खेल का दिखाया, आगे अभी बहुत कुछ देखना है, हर चीज मैसेजिंग है। सीखिए, देखिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ओस, ओके एवरीवन, बाय। चलो। Dance as graceful as the peacock's feather of Lord Krishna. The students of class 6A will perform on the sweet and devotional song Akshutam Keshivam, filling the stage with love and peace. So let's welcome them warmly with happy smiles and clapping hands.
round of applause for our performance. And now moving to the next performance, I would like to call the Pans Kumar of class 4A for a melodious poem. For a class student, I can speak a poem. वीरों ने दी अपनी जान, हमेशा याद रहेगा उनका मान. तिरंगा ऊंचा लहराएगा, उनकी यादें दिल में बस जा. आज़ादी की खुशी सबको मिले, देश को प्यार से सजाए. हम सब मिलकर वादा करें, उनके सपनों को सच बनाए. धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां इतने भावपूर्ण भाषण के लिए। तो अब अगली प्रस्तुति है जो न सिर्फ एक गीत है बल्कि एक भावना है, एक सम्मान है हिंदुस्तान की बेटी के प्रति। तो अगली प्रस्तुति है बेटी हिंदुस्तान की, जो याद दिलाएगी बेटी केवल घर की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की शान है। मृदपि च छन्दसीमन् देशे ग्रामो ग्रामा सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीराम संगस्ध्वं संवध्वं शंभु मनांसि जानतां संगस्ध्वं संवध्वं शंभु मनांसि जानतां देव रूपम यथा पूर्वे संजना उपासते। Now we bring you a heart-touching song that marks the dignity, sacrifice and courage of the daughters of India. Please welcome the students of grade 6 on the stage as they present Beti Hindustan Ki. Let's greet them with a big round of applause. वायुसेना की दो महिला सिपाही व्योमिका सिंह और दूसरी कौन, दो महिला सिपाहियों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था उन्हीं को समर्पित ये गीत है।
दुश्मन भाग न पाएगा। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से बचकर दुश्मन भाग न पाएगा। सीमाओं की रक्षा करने, सीमाओं की रक्षा करने अपने अपने ठान ली बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। इतिहास के पन्ने अब फिर ना दोहराएंगे, इतिहास के पन्ने अब फिर ना दोहराएंगे। अब की बारी शस्त्र उठाएगी द्रौपदी, क्योंकि हर बारी गोविंद ना आएंगे। अब मैं अपने अगली प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उज्जवल गिरी को। Good morning, everyone. Respected principal sir, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Ujjwal Giri. I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15 August. Independence Day in our country. Today we are celebrating 79th Independence Day of India. Independence Day in our national festival. On this day in 1947, our country got independence from British rule. Many heroes sacrificed their lives in their Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. वाही यत् प्राणगणं सबलितं कौतूहलरशेषं वन्दे सदा स्वदेशम्। This is not just a song, it is a tribute to the soldiers of our nation, the soil that nurtures us and the sacrifice that keeps the tricolor flying high. Please welcome the students of class 6 on the stage for their dance Teri Mitti. Let's welcome them with a great round of applause. विंग्स ऑफ विलियर वो हो रहा है नहीं क्या कहते हैं महाभारत का थीम सॉन्ग ये भी उधर ही मिल जाएगा तलवारों पे सर वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे रे लाठी गाड़ दूं रे जाना पाण दूं रे लाठी गाड़ दूं रे जाना पाण दूं माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे सर तेरी
पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। Give a blistering round of applause for all our performers. And so now moving to the next performance, I would like to call Arnik Masis of Class 6B for his speech. Good morning everyone. My name is Arnik Masi of Class 6B and today's hearts are filled with pride while celebrating India's 79th Independence Day. This day, August 15, is very significant in history. In 1947, India gained freedom from British colonial rule, and this freedom came from countless struggles and sacrifices from our brave freedom fighters. The contribution of Mahatma Gandhi, one who championed the non-violence resistance, and that should be remembered. Leaders like Subhash Chandra Bose inspire many to take up arms. Also, young revolutionaries like Bhagat Singh advocate for armed resistance and to be the symbol of determination. These struggles, sacrifices and determination build a vibrant and diverse nation even today. That's all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. ऐसी प्रस्तुति जिसकी नाम सुनते ही मन को शांति और श्रद्धा से भर जाती है। जी हाँ, अगली प्रस्तुति है रामायण के एक भावपूर्ण और भक्ति से भरा एक नृत्य प्रस्तुति। रामस्य चरितं श्रुत्वा धार्ययुर्गुणाञ्जना भविष्यति तदा हनून् तद् सर्वं राम्यत् जगत्। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरण, रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरण, नरो न लिप्यते पापैर्भुक्ति मुक्तिं च विन्दति। This is not just a performance, it is a promise that light will conquer the darkness. With this note, I would like to call the students of class 7th on the stage for their very beautiful dance on Ramayangi. Let's greet them with a big round of applause. आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे।
दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले ऐतिहासिक प्रस्तुति की ओर। अब समय के पहिए को पीछे मोड़ते हैं और पहुंचते हैं उस युग में जिसे इतिहास में महाभारत के नाम से जाना जाता है, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे, जहां हर युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि सत्य का था। तो आज हम उसी महाकाव्य को एक सुंदर नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब मंच पर गूंजेगा शंखनाद और जीवंत होंगी महाभारत की महिमा। Please welcome our talented 7 and 8 students as they present the powerful Mahabharat theme dance. So give them a big round of applause. ये कहानी है उस महाभारत की जहां रहता था धूर्त दुर्योधन। आमंत्रण दिया 5 पांडवों को और छल से रचा युद्ध का खेल। आमंत्रण स्वीकार कर 5 पांडव आ फंसे युद्ध के षड्यंत्र में, दुर्योधन के आंगन में। दुर्योधन के रचे रचाए खेल में एक एक कर सब हारते चले गए 5 पांडव। राज्य, साम्राज्य, मान, सम्मान स्वयं को भी हार बैठे। इतना ही नहीं तो साधारण संपत्ति की तरह दांव पर लगाई अपनी पत्नी द्रौपदी। आज तुम्हें बचाने आया हूं, पर कल शायद ना। समय का पहिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई सहारा मिलेगा। झांक भीतर, बन आत्मनिर्भर, है तू अपना स्वयं गिरधर। तो उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्युत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। रम्य
मेरे अपमान का प्रतिशोध तो रण है, दुर्योधन दुशासन करण का मरण है। मेरे ये केश यदि खुले रह जाएंगे, रण में ध्वजा बन लहराएंगे। करती हूं प्रण ये केश खोल, श्रृंगार कभी ना साधूंगी। जब चीर छाती दुशासन के, लहू से केश मैं धोऊंगी। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात, मौत की बिछी भी साथ। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 सबसे अटल। अब ना आएंगे राम अपहृत सीता को छुड़ाने, ना प्रकट होंगे कृष्ण चीर हरण से बचाने। कहाँ आएगा अब वराह डूबते मूल्यों को उबारने, और कैसे आएंगे बुद्ध शांति का पाठ पढ़ाने। अब नहीं आते नरसिंह खंभों को चीर कर, नहीं भागते प्रभु भक्त की पुकार सुनकर। जब तक एक दुराचारी था, नारायण उस पर भारी था। अब तो हर शरीर में एक असुर का वास है, कैसे पहचानेंगे वासुदेव उसे। हर घर ही दुर्योधन का निवास है, हर घर ही दुर्योधन का निवास है। धर्म का विजय हो और अधर्म का नाश हो, यही महाभारत का संदेश है। तो जोरदार तालियां हो जाएं इस मनमोहक कार्यक्रम के लिए। कितनी कुर्बानियां दी होंगी, कितनी कुर्बानियां दी होंगी, कितने सपनों को सजाया होगा। आज़ादी पाई है हमने, तब जाकर ये तिरंगा लहराया होगा। देशभक्ति का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। और अब बारी है एक और शानदार प्रस्तुति की। Please welcome Shashank Kamal of class 9 to deliver his speech, Living the Independence, and let's give them a big round of applause. Honorable Chief Guest, Shri Balram Singh Ji, founder of the Oceanic Mind School, Shri Digvijay Narayan Singh Ji, beloved principal of our school, Dr. Pradesh Kumar Mishra, and all our beloved teachers and dedicated parents. On this auspicious day, today we stand free. On this wonderful day, we celebrate our history, our heroes, our heritage, and above all, our tricolor flag and the freedom we gained after a long struggle. Happy Independence Day. But let us never forget that freedom was not gifted to us. It was torn from the hands of the most ruthless empire history has ever seen, the British Empire. A looter in the garb of ruler, speaking the language of trade but waging the war of conquest. They were a thief in the dress of traders. The Britishers didn't give India education or railway lines or culture or civilization. They only destroyed it in the country. They told us that we were uneducated and uncivilized. They gave us the language of English and law. But let me clarify, every English lesson was meant to create clerks who were obedient, unquestioning and fearful. And every railway line was laid to loot the grains, the jewels and wealth of India and transport it to Europe. Every law was drafted, was created only to bind the Indians in ironclads. Like historian Johnny Playfair said, the astronomy of the Hindus is beyond doubt the oldest in the world in 1790s. Yes, it was.
In education field, we had one of the most oldest university the world ever saw, the Takshila and the Nalanda University. Our knowledge was older than what they spoke, their languages. In astronomy, our scientists and clearly measured the distance between sun and earth, clearly described the dates of eclipses. In metallurgy, we forged rust-free iron pillars 1600 years ago that still stand rust-free even today. During the period of the British era, when the company was ruling, famine became a common feature of India, which was never even heard of in the countryside. William Hunter himself said in British Parliament that the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. And Edmund Burke referred to the English Parliament, the House of Commons, that the English rule in India was a series of despotism never heard of in Asia. Time changed. Then came the revolution of 1857. We rose, they bled us. The company's rule was replaced by that of crowns. Many people say that the crown's rule was far better than that of the company, but I say that it was the same thief dressed into a government they called themselves. Viceroys were ruling like emperors. The British Raj perfected their rule over India. Then, after a long period of time, Congress was formed by A.O. Hume, deciding that there can't be only one party participating in the election, which would be the British, but some other parties should also come over into the election representing the people of India. The Congress of then included some of the major leaders like Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale, Lala Lajpat Rai, and many others. And after some time, Mahatma Gandhi came to India after a long struggle against apartheid in South Africa. He came to India with no weapon, but only truth as a shield. His Dandi March regarding salt was not just for drops of salt or against the tax that English were imposing over our country. It was a series of defiance that meant to scratch the British crown. He showed that only weapons are not only solely responsible for ending any colonial rule in a country. He showed that freedom could also be achieved by people refusing to bow to the authorities. Then the final mask dropped when the World War II came. The British dragged India into a war which did not declare. They drained us with resources or our soldiers. In lieu, they promised that they would be granting us freedom, which they weren't gonna do. Later on, the war proved out to be a complete masquerade of Britain. Hitler's assault on Europe bankrupted Britain. Europe was completely devastated. Allied forces were losing at one point. That showed us that none of the empires in the world were incivil. Later on, this inspired various soldiers who were fighting from India in Burma, Africa, or any other region of the world. The various soldiers who fought came back to India with a vision of making India independent using the weapons they have used for the British government. This inspired leaders like Subhash Chandra Bose to take the help of Axis powers, and thus in a change of fate, the war and its enemies became very helpful for the Indian freedom struggle. Subhash Chandra Bose led to the formation of Indian National Army from Berlin to Tokyo. But his march to Burma was abolished due to the loss of Japan's support. But this showed that India had daughters and sons who were ready to fire upon the Britishers or any oppressors for making the country independent. 78 years ago in New Delhi, the leaders of our nation boldly proclaimed the eternal truth that we are all made equal by God. Thanks to the courage of those patriots, that today India stands as one of the most exceptional, virtuous and mighty nation in the world. Our engineers, architects inspired the world with their transcendent work of beauty. Our entrepreneurs, businessmen and various companies have uplifted the world out of poverty.
billions and billions have benefited from our scientific works. We were the one who found decimal system or early calculus. It was in India only when the world was in the space race and India became the first country to land on Mars in the very first attempt. Later on, till this date, we have did various splendid missions in space, may it be Chandrayaan series or the Mangalyaan or the upcoming Gaganyaan. Our country is no more behind in any of the sectors, either it be economic, social or space race. Today, our country is fighting corruption and the nepotism and separatism and extremism caused due to the decades of loot by the British rule. But we must remember that we do not have to kneel against any external power anymore. Our country is sovereign and it has proven its sovereignty in many ways. Thank you. Have a wonderful day. भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा जल में बहती हुई कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस एक ही बात का घमंड है, मैं भारत की और भारत देश मेरा है। To honor their spirit, our next performance is a soulful tribute presenting before you "Ae Watan Mere Watan." So please give a big round of applause. Hello. हेलो
वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, मेरे वतन। साधन नहीं है, बल्कि यह हमें अनेकता में एकता को दर्शाने का भी मंच है। आज हम भारत के अनेक समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों का अनुभव करते हैं। Our next performance is a colorful and energetic Jhijia song. It is a folk dance of Bihar. Please welcome them with a blistering round of applause. हेलो झिझिया नाच मिथिला के प्रमुख नाच अछि। दुर्गा पूजा के दिन ई नाच कुमारी कन्या सब करैत अछि। मिथिला के ई नाच में कन्या सब अपन माथा पर बर्क दिया आ भुरका वाला गैला लऽ कऽ नाच करैत अछि। भरोसे मोर हम बाबा झिझिया बनली है हो
प्रतिज्ञा कक्षा 8वीं की छात्राओं के द्वारा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। नाद संबुध अनुभंज निहारा हो के हु एक दास तुम्हारा, आयशु का कहिश किन मोही, सुनी दिशाई भूले बुनि गोही। So let's move on to our next performance, the calmness and humility of Lord Ram and fearless of our Pashuram. Both are important for our strong nation. Please, let's welcome for them with a big round of applause. इरफान क्लास 1A स्टेज पर आइए। मान इरफान क्लास 1A। Noman Irfan, please come on the stage. Class 1A. Noman Irfan, please come on the stage. Noman Irfan, please come on the stage. चालू करें। हेलो। यही वो धनुष है, इसे उठाना क्या कठिन है? कठिनाई का तो तब पता चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। हैं, आए बड़े उठाने वाले। सुना है बड़े बड़े वीर से नहीं उठा पाए। वो वीर नहीं, ढोंगी होंगे ढोंगी। देखना मैं किसे ऐसे फूल की तरह उठाता हूँ। मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महूजन जुग विदूरे, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी ऐसी, प्रभु मूरत तिन देखी ऐसी, प्रभु मूरत तिन देखी ऐसी। प्रणाम मुनिवर, आइए आसन ग्रहण कीजिए। बड़े विशेष अतिथि लगते हैं। लगता है सीता का विवाह इनसे पहले ही तय हो चुकी है। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि स्वयं महाराज जो इनका स्वागत कर रहे हैं। अरे इन बालकों का नहीं, स्वामी विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं महाराज। ये बालक तो ऐसे ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो, ये दूध मुँहे बच्चे शिव का धनुष उठाएंगे? हा हा हा। महाराज, अब हमें राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। जानी सुअवसर सिया तवा, पठई जनक बुला, चतुर सखी सुंदर सकला, सादर चली लवा। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी।
हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान कहे मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करे। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान कहे मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करें। हम बंदी जन अब हमारे चारण इस सभा में महाराज के प्रण की घोषणा करेंगे। सुने 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 सर्वदा सुने, यह सर्वविदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह का एक ही शर्त है। जो सूरवीर शिव का धनुष उठा अंचा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह होगा। अब इस स्वयंवर का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। हा 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 बस बहुत हुआ, अब और उपहास न हो तो अच्छा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को शूरवीर कहलाने वालों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं। लज्जा से झुके हुए इनके चेहरे मुझसे आज एक ही बात कर रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुवीर श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बातें करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। और आप स्वयं श्री राम को वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इस परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु आज्ञा दे तो यह पुराना धनुष क्या चीज है। मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर इस तरह पटकूं किसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान सहा नहीं गया। मुझे दीजिए कि मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। वत्स शांत हो जाओ। आओ
अपने स्थान पर विराजो। हेलो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं था। घोर निराशा के कारण यह ओंकार फूट पड़े। यदि किसी की यह अवहेलना हुई हो तो मुझे क्षमा करें। राम उठो, महाराज जनक के इस संताप को दूर करो। ये लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने। लो, अब विश्वामित्र जी भी हमारा उपहास उड़ा रहे। ये बालक भला धनुष कैसे उठाएगा? होनहार को कौन जानता है दीदी, होने दीजिए जो हो रहा है। राम, आयुष्मान भव। अभिनंदन है महर्षि। नमस्तुभ्यम ब्रह्म ऋषि। वत्स आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर मैं अपना परिचय देना उचित नहीं समझा। भगवान, यह अयोध्या मेरे पुत्र राम और बड़े पर्वत आ रहे हैं। आइए प्रभु, आसन ग्रहण करें। ये मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्ख जनाब। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान शिव के धनुष की टूटने की घोर ध्वनि का शोर सुनाई दिया। हम यह जानने आए हैं किसने हमारे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा। बता बता, किसकी मृत्यु मुझे यहाँ खींच कर लाई है, जल्दी बता। बताता क्यों नहीं मूर्ख? भगवान, इस शिव के धनुष को तोड़े ऐसा साहस तो आपके कोई दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो प्रभु की सेवा करे, वो नहीं जो शत्रुओं का काम करे। जो शत्रुओं का काम करता है उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। जिसने भी ये महान शिव धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु शत्रु के समान है। वो आज निश्चय ही मारा जाएगा। सावधान, यहाँ उपस्थित मैं सभी राजाओं को सूचित कर देना चाहता हूँ, जिसने भी ये महान शिव धनुष तोड़ा वो सभा से अलग हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। एक धनुष क्या टूट गया, इसमें इतना क्रोध? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महान शिव धनुष को तू बच्चों के धनुइयों के समान समझता है। इससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। तूने धनुष, किसने ये धनुष तोड़ा, जल्दी बता, अन्यथा यहीं पे मारा जाएगा। आप मुझे डरा रहे हैं। ऐसा लगता है एक बालक फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहता है। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और यह टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं। आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। बहुत धमका दिया आपने। ढिठाई की भी हार होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं। मुझे मोह है कि नहीं यह तो नहीं पता, परंतु आपको इस धनुष पर बहुत मोह आ रहा है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरफ बिलबिला रहे हैं। बस बहुत हो गया। सठ, अशिष्ट, निरंकुश बालक, कदाचित तुमने मुझे वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। मैं वह परशुराम हूँ जिसका नाम सुनकर घर में पल रहे शिशु अपना प्राण त्याग देते हैं। बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, क्षत्रिय कुलनाशक। मैंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया है। आप मुझे डराना चाहते हैं। इन धमकियों से मेरा कुछ नहीं हो सकता। आइए। लगता है तू अपनी माँ को निपुति बनाना चाहता है। विश्वामित्र, यदि इस बालक की रक्षा चाहते हो तो तुरंत इसे मेरे आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए महाराज, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे मेरे पराक्रम और शक्ति के बारे में बताओ। आप अपनी गुणगाथा स्वयं इतनी अच्छी गा लेते हैं कि दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर अभी तक आपकी महान गाथा गाते गाते आपका दिल ना भरा हो तो यह भी सुना दीजिए। आपने एक दोष के कारण लाखों क्षत्रियों का वध कैसे किया।
पिता का ऋण कैसे चुकाया, इस फरसे से अपनी माँ का गला कैसे काटा। बस बात हो गया, अब कोई मुझे दोष न देना। अब ये बालक निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है अब तक ये मेरे कुठारू से जीवित कैसे बचा रहा। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और मेरे बाणों से बचा रहे। लक्ष्मण शांत हो जाए महर्षि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते। भगवान, ये शिव धनुष मेरे हाथों में है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए, चाहे मुझे अपना दास समझकर, चाहे मुझे पर क्रोध कीजिए, कृपा कीजिए, चाहे मेरे प्राण ले लीजिए। हाँ, तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं। महान शिव धनुष तोड़कर मुझे ज्ञान सिखा रहे हो, परंतु अब और ये छल कपट की बातें नहीं चल सकती। तुम समझते हो अपने आप को राम कहकर परशुराम का सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और युद्ध करो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे भाई समेत मार डालूंगा। भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आप अभी तक अपने राम को पहचाना नहीं। हे राम, ये धनुष लो। यदि तुम इस पर बाणों का संधान कर सको तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा, मेरा संदेह मिट जाएगा। भगवान, ये दिव्य वैष्णव बाण है, ये कभी खाली नहीं जाता। अब आप बताइए इससे किसे नष्ट करूं? हे राम, तुम इसे नष्ट कर दो मेरे पुण्य कर्मों को, क्रोध को और अहंकार जनित घृणा को। हे राम, तुम इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। हे रघुनंदन, आपकी जय। हेलो, हेलो, मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीतारामचरित अति पावन, मधुर सरस अति मंद भावन। प्यास बुझत न बुझाए, हिया की प्यास बुझत न बुझाए। Performance it is. Everyone put a big round of applause for this magnificent performance. Now we have a performance that make every Indian bow their head in the respect and pride of the brave soldiers who laid down their lives for the dignity and peace of our country. Today the students will carry this
emotion on stage. जीत के लिए ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए ऐसा खून चाहिए जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। ये आसमां तो आएगा ज़मीं पर, ये आसमां तो आएगा ज़मीं पर, बस जीत में हमें इरादों की कबूल चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कक्षा 9वीं के छात्र को जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गायन। और एक बस गाना नहीं है, ये उन शहीदों की दिल की आवाज़ है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। Hello. माइक को थोड़ा क्लोज रखिएगा पास। स्टार्ट नाउ।
जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद सेना। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। क्या ही शानदार प्रस्तुति। अब बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी कार्यक्रम की ओर। इसके बाद हम लोग अपना करेंगे कार्यक्रम की समाप्ति। Now we have a heartful performance that shows the unity, culture and spirit of our country. Through this act, our performers will show that India is not just a country, it is a family where each heart beats together for the progress, unity and peace of our country. So please welcome the students of class 7B for their delightful presentation on Bharat Janta. Put a big round of applause for them. आप में से जिस किसी ने भी खाना नहीं खाया वो जाके खाना खा ले। All crew member come near the stage. जिस किसी ने भी खाना नहीं खाया वो प्लीज जाके खाना खा लीजिए। हेलो
Give a big hand for them. Now, I would like to call our respected founder of our school, Shri Digvijan Nair sir. Please come on the stage. ज्यादा बोलना नहीं है, वोट ऑफ थैंक्स में सिर्फ थैंक यू बोला जाता है, लेकिन थैंक्स किसको किसको देना है ये भी जरा सुन लीजिए। इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए प्रिंसिपल सर की गाइडेंस, अभिषेक जी की लीडरशिप, अभी अभिषेक जी आप देखे होंगे हर प्रोग्राम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कार्यक्रम का सिलेक्शंस में सारे टीचर्स का सहयोग, बच्चों का डिसिप्लिन, तो सबको इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूंगा कि गार्जियन लोग जो इस साल इस तरीके से आए, रुके, कार्यक्रम देखे, आप बच्चों का साथ दीजिए। आप ही के बच्चे हैं, पिछले 10 साल में बच्चों ने काफी प्रोग्रेस किया है, विद्यालय आगे जाएगा। जैसे मैंने बोला था, 2 चीज, एक तो स्कूल की संख्या बढ़ा रहा हूं मैं, दूसरा गोपालगंज में कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स स्कूल नहीं है। मैं अभी आया हूं आपके बच्चों के 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए, मैं एक स्पोर्ट्स स्कूल के लिए जमीन ढूंढ रहा हूं, कोई मेरी मदद कर सकता है तो करे। अगले 3 से 4 महीने प्रोबेबली बिहार विधानसभा चुनाव के बाद स्पोर्ट्स स्कूल ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसलिए नहीं होगा कि मुझे कुछ फीस मिल जाएगा, मैंने पहले बोल दिया था, मुझे पैसे कमाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारा काम मैं करके पैसा कमा सकता हूं। अभी मैं अपने आप को समेट रहा हूं कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, और बड़ा कैसे कर रहा हूं आप देख रहे होंगे। जब मैंने कार्यक्रम को ब्रीफ कर दिया उसके बाद मेरा कोई इंटरेक्शंस नहीं था। प्रिंसिपल सर, अभिषेक जी, अभय जी, रणविजय जी, स्कूल के सारे शिक्षक एक लाइन में इस काम को किए। यह प्रोग्राम सुपर हिट रहा। सुपर हिट रहा, जो लोग हैं वो लोग तो बताइए सुपर हिट रहा है ना। दूसरा, बच्चे फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे पीछे आ जाइए एक एक करके। इसमें कुछ 10th के बच्चे हैं, शायद इनके लिए, ये स्कूल के लिए, और आगे जगह मिलेगा तो हम IIT मेडिकल कोचिंग्स के लिए भी प्रयासरत हैं। कुछ अच्छा जगह मिलेगा, इस जगह को रिजर्व रखते हैं। शायद दूसरा जगह भी गोपालगंज में अब नहीं है कि हम वहां कार्यक्रम कर सकें, और आपका साथ रहा तो इनको याद माउंटेन पर है। दूसरा, क्योंकि मेरी भतीजी है तो उसको ये हनक होना चाहिए कि स्कूल मेरा है या मेरे माँ बाप का है। मैंने पूछा कि ये स्कूल तुम जानते हो स्कूल किसका है, तो उसका जवाब था, उसका बॉडी लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता। आप सोच लीजिए, जब दुनिया में धन के लिए भाई भाई लड़ते हैं, एक दूसरे से आपस में बात करते होंगे, शायद उसके माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा होगा कि स्कूल मेरा है, कि स्कूल किसका है, इसका जिक्र नहीं हुआ होगा हमारे घर में। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सुने, आप अपने घर में, आप अपने परिवार में इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए, एक साथ रहिए। जो यूनिटी में आज हम 15 अगस्त को क्यों हम बार बार नारा लगाते हैं, हर साल नारा लगाते हैं, तो मेरा सपना यही है कि मेरा परिवार जैसा है वैसे सबका परिवार रहे, और सब लोग मिल करके गोपालगंज को, बिहार को बहुत सुंदर बनाएंगे। आने वाले समय में गोपालगंज से खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और पत्रकारिता के क्षेत्र में, या जो भी संभव जगह है वहां पे गोपालगंज के बच्चे
पहले चरित्रवान बने फिर विद्यावान बने, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे खाली पढ़ाई करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों है? अगर जिन लोगों ने इसके पहले देश संभाला है या बाकी चीजें अलग अलग जगहों पे किए हैं, शायद वो थोड़ी सी संस्कार रहते। आप देखिए बिहार में कितना पुल टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? सब बिहार एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा शहीद वहां पुल होते हैं। आदमी का तो छोड़ दीजिए, आदमी की कोई गिनती नहीं है। तो अगर पढ़े लिखे बच्चे होते, उनके मन में आदर्श होता, उनके मन में प्रतिबद्धता होती, वो चाहते कि हमारा ये हमारा राज्य है, हमारा जिला है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारा देश है, हमारा देश है, आगे बढ़े। तो ये सारा देश की बागडोर मेरे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर है। और इसमें से आपको बताऊंगा मैं, 2026 खाली छोड़ दिया है बिहार के लिए। हेलो, ध्यान रखिएगा, 2026 खाली छोड़ दिया है कि बिहार के लोग अब अपनी आखिरी किस्मत चमका लें। 2027 का बिहार टॉपर गोपालगंज से होगा, ये मेरा टारगेट है। और अब आप बोलिएगा कि दिग्विजय सर आप कितना झूठ बोलते हैं। हो सकता है, क्यों, कैसे बोलिएगा कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि स्कूल से आप दूर होते जा रहे हैं। मैंने जब मैं सोलो किया था तो कहा था दिग्विजय आदमी नहीं है, सिस्टम है। दिग्विजय रहे ना रहे, अभी आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरी हार्ट अटैक हो जाए, फिर कल ओसनिक माइंड स्कूल कौन चलाएगा? हो सकता है। तो मैंने सिस्टम बनाने के लिए काम कर रहा हूं। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी कर रहे हैं। 2027 मेरा टारगेट है। लेकिन ये बच्चे जो दिख रहे हैं ऑन स्टेज, इसमें से बहुत सारे बच्चे क्लास 10th के छात्र हैं। जरा हाथ उठा दो, 10th वाले। तुम्हारे पास ये प्रूफ करने के लिए और मुझे चैलेंज करने के लिए मौका है कि सर आपने तो मेरा तो नाम तक नहीं लिया, मेरा जिक्र भी नहीं किया, लेकिन जो काम आपको 2027 में करना था वो 2026 में कौन कौन करना चाहता है? 2026 में जिसको जो सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। गार्जियन करे ना करे, मैं इन बच्चों को सपोर्ट, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है, इन बच्चों को दूंगा। आगे बढ़ना है। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन आसान रास्ते पे तो सब कोई चलता है। जो कठिन रास्ते पे चलते हैं उन्हीं के नाम अमर हो जाते हैं। आप बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, चले गए, बहुत जगह पे व्यस्त थे, लेकिन आप में से कुछ एक लोग हैं जो बैठे रहे, मेरे आग्रह से ही सही, लेकिन बैठे रहे, सुनते रहे, आपने अपने बच्चों को देखा। तो मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं। बाकी सारे जो भी ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति नतमस्तक होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम यहीं स्थगित हो रहा है, लेकिन जब अगला 2026 की 15 अगस्त के लिए जब हम इकट्ठा होंगे तो शायद गोपालगंज के रिकॉर्ड में आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि नाम क्या रखेंगे, तो ओसनिक माइंड स्पोर्ट्स स्कूल, ओसनिक माइंड स्पोर्ट्स स्कूल। शायद 2026 में गोपालगंज के बच्चे जो खेल हम शुरू करेंगे उसमें सिलेक्शंस में जाएंगे। ये बच्चे आगे का रास्ता पढ़ाई में ये आगे बढ़ेंगे। +2 भी शुरू करने की तैयारी है। तो एक साथ कई सारी चीजें मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं अब नहीं करके, मेरे पीछे लीडरशिप कुछ लोग हैं जो अभी आप देखे नहीं हैं, मिले नहीं हैं। एक अभी बहुत जल्दी आपको नोटिस मिलेगा पेरेंटिंग पाठशाला का, जो मेरा एक प्रोग्राम था, फ्लैगशिप प्रोग्राम, कोविड के बाद से कभी नहीं हुआ, इस साल मैं करने जा रहा हूं। उस कार्यक्रम में मैं बुलाऊंगा कि जिसका बेटा सुप्रीम कोर्ट का यंगेस्ट एडवोकेट बना है, उस शख्स से आपको मिलाऊंगा। उसकी बेटी, एक ही आदमी, बेटा सुप्रीम कोर्ट का सबसे युवा एडवोकेट बना है, बहस करने वाला, और बेटी एक दिन की ब्रिटिश काउंसलेट बनी है, जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के हाई कमिश्नर इंडिया में होते हैं। मैं वैसे पेरेंट से मेरी कोशिश है, क्योंकि उनकी मैडम एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी की CEO हैं, तो सिर्फ डेट इसलिए फिक्स नहीं हो रहा है कि वो ट्रेवल करते रहती हैं। मेरी कोशिश है कि अगले 2 से 3 महीने में प्रोबेबली छठ दिवाली से पहले एक बार आपको बुलाऊं, उन पेरेंट्स से मिलाऊं। बाकी कुछ एक अपने उन लोगों के साथ जो हमारे साथ इस थॉट प्रोसेस में है। आप सबको एक बार पुनः नतमस्तक हूं, धन्यवाद देता हूं। आज़ादी मिली है, इसको संभाल के रखना है, संभाल के रखिएगा। बस, जय हिंद।
I request all the teachers to please come on the stage.